Hello students, how are you? Once again, I have come with one chapter of English literature book of class 9 Beehive, The Fun They Had. The Fun They Had. Dear students, today we will discuss about this story. First of all, we will discuss about the author. Thereafter, we will discuss about introduction to the story. Thereafter, we will discuss about title of the story. Then we will have explanation of our characters. And at last, we will discuss about summary of the story. So let's discuss first of all about the author. Isaac Asimov wrote this science fiction, The Fun They Had. You see here, The Fun They Had, written by Isaac Asimov. Isaac Asimov, as you see here in the box, was born on 2nd January 1920. He was died on 6th April 1992. Was an American writer and a professor of biochemistry at Boston University. He wrote science fiction and popular science books. He was actually a science teacher. He was related to science, biochemistry, and he worked as professor at Boston University. But he was also interested with literature. There was a genre in him of literature, so he also partly took interest in writing fictions and popular science books. This is all about the author in brief. Now let's move to the next topic, that is the very important part of the story. Introduction to the story. Introduction to the story. कहानी का परिचय. कहानी के परिचय में हम लोग कहानी के बारे में जानेंगे कि इसका सोर्स क्या है, कहानी का थीम क्या है, what the writer wants or has tried to convey the message through this story. We will discuss under this topic. The Fun They Had is a science fiction. This is an imaginary story. Fiction is already a type of story. There are different types of story, you all know, and in another video we will have a discussion over other types of the story as well. Let's discuss fiction type of the story, that is having fixes statements, fixes theme and all. So this is science fiction. Fiction, it depends on, it is based on imagination and all. As Margie, the protagonist, the very important role, plays the vital role in this story. She imagines about the future education system. That is why it's a fiction. It's not real. It's fictitious. जो काल्पनिक है. She imagines what will be happening in coming time to our educational system. So she imagines and writes in her diary. This is an imaginary story as Margie imagines about the future education system. She thinks what will be happening in coming future as science and technology is developing and going towards the advancement, and we all are very much familiar and acquainted with, because science and technology makes our work easy. So we are
all becoming habituated of using science and technology. In that case, what will be happening in coming future after a century, after 200 years or 300 years, as we are proceeding towards science and technology? So she imagines the story sets in the future in 2157. It's 22nd century. What will be happen over there after 200 years or 300 years, when books and schools will perhaps not exist? जब शायद जिस तरह से हम साइंस विज्ञान के क्षेत्र में अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं, अग्रसर कर रहे हैं और हम उस पर आश्रित हो रहे हैं, आने वाले समय में यह कल्पना किया जाता है राइटर के द्वारा कि क्या होगा? शायद ना कोई स्कूल होगा, ना ही कोई बुक्स होंगे, और बच्चे घर में ही बैठ करके कंप्यूटर टीचर के द्वारा, रोबोट के द्वारा, अब मैकेनिकल टीचर के द्वारा बच्चे की पढ़ाई होगी. They will not have the fun. They will not have the fun which we are enjoying now in our school, in our colleges, in our educational institutions. We sit together in our class and enjoy together, play together, share our ideas among ourselves and help each other, share our ideas and knowledge with each other. That process will not be there in coming future. It's the imagination of the writer. Will perhaps not exist. How will children study then? तब बच्चे कैसे पढ़ेंगे? A question arises there. जिस तरह से हम हर चीज मशीन से कर रहे हैं, आज अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या हमारे बीच है बिकॉज ऑफ मशीन्स. हर क्षेत्र में हम मशीन का उपयोग कर रहे हैं, उसकी मदद ले रहे हैं और हम इस कारण से धीरे धीरे अपने आप को पैरालाइज कर रहे हैं, एक बैड हैबिट डेवलप कर रहे हैं जिसका बुरा परिणाम देखने को मिलेगा. और आने वाले समय में हमें हमारे पास कोई फन, कोई इंटरटेनमेंट, कोई इंजॉयमेंट, कोई आपसी सहानुभूति, ब्रदरहुड, फ्रेटर्निटी नहीं होगी. बिकॉज आदमी इंडिविजुअल हो जाएगा, सेल्फ डिपेंडेंट और आइसोलेटेड हो जाएगा. परहैप्स नॉट एग्जिस्ट. हाउ विल चिल्ड्रेन स्टडी देन? तब बच्चे कैसे पढ़ेंगे? तब बच्चे एक क्वेश्चन उठता है राइटर के जहन में, उसके दिलो दिमाग में, कि आने वाले समय में बच्चे बिना स्कूल के, बिना किताब के कैसे पढ़ेंगे? Very very important question rises here in the mind of the writer. How will children get study, get education? तो इसके लिए बच्चे, आने वाले समय में बच्चे भी, हमारे विद्यार्थी, कमिंग फ्यूचर के विद्यार्थी, हमारा कमिंग जनरेशन कंप्यूटर के द्वारा पढ़ेगा, मशीन के द्वारा पढ़ेगा. घर में ही उसका स्कूल होगा, वह उसे स्कूल जाने की जरूरत नहीं होगी, वह मौका उसे नहीं मिलेगा, वह उतना भाग्यवान नहीं होगा कि स्कूल जाए और अन्य साथियों के साथ खेले कूदे और अपनी आइडिया को शेयर करे. नाउ लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट line. It is a futuristic story. This is the introductory part of the story. So in brief I am explaining. In summary part we will have a elaborate explanation over this story. So it's a futuristic story. या फ्यूचर में कहानी सेट होने वाला है. It's the imagination. आने वाले समय की कहानी है. The story opens with. स्टोरी शुरू कैसे होता है, कहानी कैसे शुरू होती है, हम इसको देखेंगे. स्टोरी जब ओपन्स होता है, जब फैक्ट रिवील्स होता है, स्टोरी द फर्स्ट लाइन ओपन्स, इट ओपन्स विथ मार्गी, द इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी. उसी के साथ शुरू होता है. एंड शी इज राइटिंग एट दैट टाइम, शी स्टार्ट्स राइटिंग हर डायरी एंड इन द डायरी शी इज एक्साइटेड टू राइट द वेरी इंपॉर्टेंट लाइन टुडे. That is about an old book. एक प्राचीन जमाने की कहानी की किताब, एक पुराने जमाने में पढ़ाए जाने वाली किताब जो आज हम पढ़ रहे हैं, वह किताब आने वाले 200 साल के बाद हमारे लिए एक आश्चर्य का विषय होगा. जब हमारे कमिंग जनरेशन को बुक हाथ लगेगा, कहीं एथिक में, कहीं किसी स्टोर रूम में, कहीं किसी लाइब्रेरी में, कहीं भी उन्हें अपने पूर्वजों के द्वारा, अपने
एंसेस्टर्स के द्वारा जब बताया जाएगा कि उस समय एक ऐसा स्कूल होता था, इस तरह से किताबें होती थी, हाँ, वह किताब अभी जो व्हाइट पेज है 200 साल, आने वाले 200 साल के बाद पीला पीला कुछ भद्दा फटा पुराना दिखेगा, उसे देख करके कमिंग जनरेशन बहुत आश्चर्यचकित होंगे। सो फ्यूचरिस्टिक स्टोरी, द स्टोरी opens with Margie writing her diary about an old book that her neighbor Tommy is the another character, important character in the story, जो उस कहानी का किताब उसे मिलता है अपने एटिक रूम में, घर के ही एक स्टोर रूम में, वेयर हाउस रूम में से, उसमें उसको कहीं पुराना सामान जहाँ रखा जाता है उसमें उसे बुक मिलता है। किसको? टॉमी को, जो मैगी का नेबर भी है और उसका दोस्त भी है, हैड फाउंड, जिसे वो मिला। दिस स्टोरी इज रिगार्डिंग स्कूल लाइफ एंड द फन वी हैव एट स्कूल फॉर मीटिंग एंड हेल्पिंग ईच अदर। यह स्टोरी स्कूल लाइफ पर आधारित है, जिसमें जहां जिस स्कूल में जाके हम अपने क्लास के साथियों के साथ, स्कूलमेट्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ, अपने शिक्षकों के बीच अध्ययन करते हैं, पठन पाठन का कार्य करते हैं, एक दूसरे से आइडिया शेयर करते हैं और बहुत सारे मेरीमेंट, बहुत सारा इंजॉयमेंट, इंटरटेनमेंट स्कूल कैंपस में हम अपने साथियों के साथ करते हैं। जो राइटर के अकॉर्डिंग इन कमिंग फ्यूचर these things we will not have with our new coming generation. Now let's jump to the next topic under this in this video, that is the title of the story. कहानी का शीर्षक, परिचय, शीर्षक से आपको परिचय कराए। क्या शीर्षक जो कहानी का है द फन दे हैड, यह उचित है कि कुछ और हो सकता था? बिल्कुल प्यारे बच्चों, कुछ और भी हो सकता था, परंतु दिस इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट हेडिंग टाइटल ऑफ द स्टोरी। राइटर हैज decided to write, writer has planned, and definitely because the fun they had here, we have the very important words they and fun. They, that denotes our ancestors. Just you should imagine that you are living in coming future in 23rd century. That time you will say your ancestors they, and about their fun they had at their school. So this is the title is justified because it is justified as Margie, the protagonist, जो इस कहानी की मुख्य पात्र है, of the story likes traditional way of education, क्योंकि जब उसने उस किताब को पढ़ा और पुराने जमाने के मार्गी और टॉमी, ये 23वीं सदी 22वीं सदी के बच्चे हैं, जिन्हें पुराने जमाने की स्कूल और स्कूल व्यवस्था और शिक्षण संस्थान के बारे में बताया जाता है। जब वो इस चीज की जानकारी उन्हें मिलती है तब वो रियलाइज करते हैं, एंड दे लाइक, स्पेशली मार्गी लाइक्स ट्रेडिशनल वे ऑफ एजुकेशन बिकॉज इट हैड fun at all. With education, with learning, there was fun. That is why a child like Margie will certainly like that system, जहाँ fun भी हो, पढ़ाई के साथ साथ enjoyment हो, fun, learning with fun, or learning in fun. She thinks about the fun our ancestors, जो हमारे पूर्वजों के पठन पाठन के दरमियान केवल सीखने का ही व्यवस्था नहीं था, वह लर्निंग फन, इंटरटेनमेंट, एंजॉयमेंट के साथ होता था। कितना सुखद वो समय होगा। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द कैरेक्टर्स इन द स्टोरी। पहला कैरेक्टर है, हम पात्रों के बारे में पढ़ेंगे। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मार्गी का कैरेक्टर स्केच करिए, sketch the brief character of Margie, the protagonist of the story. In that case we will answer Margie, the protagonist, जो इस कहानी की मुख्य पात्र है, of the story
is an 11 years old girl. वह 11 साल की होती है and when the story said she is writing her diary about the old book that Tommy had found in his attic. She is a very curious girl. वह एक बहुत जागरूक और क्यूरियस जिज्ञासु लड़की है। जिज्ञासु वह होता है जो जानने की बहुत जानने की इच्छा रखता है। यह प्रूफ होता है जब हम स्टोरी से गो थ्रू होते हैं, उसके टेक्स्ट से हमें पता चलता है कि थ्रू आउट द स्टोरी एज शी आस्क्स क्वेश्चंस थ्रू आउट द स्टोरी। यह नेचर है मार्गी का। पूरे कहानी में मार्गी ने क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछा है और इस तरह से हम इस आधार पर कह सकते हैं कि मार्गी बहुत क्यूरियस गर्ल है। वह एक जिज्ञासु लड़की है। जैसे कि उसने स्टोरी में बहुत सारा क्वेश्चंस पूछा है, उसे और भी जानने की इच्छा है। हमारे बच्चों, इस तरह से आपके अंदर भी बहुत जानने की इच्छा होनी चाहिए। नाउ वी हैव अ सेकंड कैरेक्टर दैट इज टॉमी, अ फ्रेंड एंड नेबर ऑफ मार्गी, जो मार्गी का पड़ोसी भी है और उसका दोस्त भी है। वह एक लड़का है, 13 साल का लड़का है, जो he finds the old book in an attic, जिसे एटिक में एक पुरानी किताब, प्राचीन समय का किताब मिलता है। उसे देख करके वह बहुत आश्चर्यचकित होता है कि what is this? A question all of a sudden when he finds the book in an attic room, a question all of a sudden arises in his mind, what is this? Because उनके लिए वह निश्चित रूप से एक आश्चर्य का विषय है, क्योंकि जिसने कभी बुक जैसा कोई वस्तु नहीं देखा हो, बुक में लिखे हुए फॉन्ट जो आज कंप्यूटर के स्क्रीन पे मूव करता है, वही चीज उस बुक में लिखा हो, यह देख करके उसे आश्चर्य होता है। So he exclaims with joy and surprise about which Margie writes in her diary, और उसी किताब के बारे में मार्गी अपने डायरी में लिखती है। थर्ड कैरेक्टर है काउंटी इंस्पेक्टर। काउंटी इंस्पेक्टर एक कैरेक्टर है, वो भी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, जो he fixes Margie's mechanical teacher. Margie's mechanical teacher. मार्गी के मैकेनिकल टीचर को जो इंस्टॉल करता है उसके रूम में आकर के, जो रोबोटिक कंप्यूटर है, जो रोबोटिक टीचर है, मैकेनिकल टीचर है, जिससे मार्गी अब पढ़ती है। जब 200 साल के बाद बच्चे रूम में ही रह करके उनका एक स्टडी रूम होगा, उसमें उनका कंप्यूटर टीचर होगा, मैकेनिकल टीचर होगा, और उसे इंस्टॉल करने के लिए मैकेनिक आएंगे। तो वही मैकेनिक काउंटी इंस्पेक्टर, जो एक मैकेनिक होता है, मार्गी के मैकेनिक कंप्यूटर को इंस्टॉल करने वाला, लेसन को सेट करने वाला उसके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, और अगर कभी कोई एरर आ जाए तो उसे करेक्ट करने वाला। फोर्थ कैरेक्टर है मार्गीज मदर। हर नेम इज मिसेस जोन्स। शी इज मिसेस जोन्स, मार्गी की मां मिसेस जोन्स, जो हाईली एम्बिशियस लेडी होती है। वो बहुत एम्बिशियस होती है बिकॉज शी बिकम्स वेरी सैड व्हेन शी finds her child Margie is not getting success in her lesson. She is not learning it properly because she goes back. She lingers behind. She does not cope up with the next lesson according to her age and standard. So she becomes sad because she is very ambitious. She thinks her child must learn these things. So dear children, this is all about the introductory part, very important part we discussed. Now we will discuss about the summary of the story. So dear children, let us discuss about the summary of the story. Now this is the last part of the story, and the summary that I explained and I have written on the board also. You will note it down in your fair copy for your further use, and this will also help you in answering the question that has been asked in your textbook. So let us discuss the story. The story opens with Margie. जब कहानी शुरू होता है तो सबसे प्रथम मार्गी, जो इस स्टोरी की प्रोटैगोनिस्ट है, जो मुख्य कैरेक्टर है, वो दिखती है। And that time she is writing in her diary about an old book. उस समय
अपनी डायरी लिख रही होती है। हम प्रायः आपको आपके क्लास में डायरी एंट्री के बारे में बताते हैं। We should every day make our diary one page when we go to bed at night. जब रात में आप जाओ तो एक पेज डायरी जरूर लिखो अपनी दिनचर्या का वर्णन करते हुए। So similarly, she is having the habit of making her diary every day, but today is the special day. She makes the entry of that old book which Tommy, her friend, her neighbor, finds in his attic. Attic is the storehouse, warehouse. वो एक रूम होता है, बालकनी भी आप उसको बोल सकते हैं, जिसमें वो एक स्टोर रूम कर सकते हैं, जिसमें हम अनयूज्ड मटेरियल्स जो सामान होते हैं घर के उसे रखते हैं। उसी में टॉमी को, जो मार्गी का एक नेबर है, पड़ोसी है, उसका एक अच्छा सा मित्र भी है, उसे एक बुक मिलता है। वह बुक बहुत पुराना बुक है, ओल्ड बुक है, जो उसके किसी पूर्वज के द्वारा पढ़ा गया था या उनके स्कूल के समय का बुक होगा, लेकिन वो रखा हुआ है। आपके बच्चे, आपके भी घर में पुराने जमाने का कुछ कुछ चीज मिलता है, जैसे कोई सिक्का हो, 5 पैसे की सिक्का हो, जो कुछ हमें कॉपर का मटेरियल सब उस जमाने का एटिक सब मिलता है, और हम उसको देखकर आश्चर्यचकित होते हैं कि क्या ऐसा होता था, कोई कॉइन ऐसा उस समय रुपया चलता था, ऐसे लोग कपड़ा पहनते थे, समथिंग लाइक दैट। सो इट्स द सोर्स ऑफ देयर अमेजमेंट एंड एक्साइटमेंट। Margie remembers her grandfather, or while writing the diary, she remembers she is going to make the entry of that book which Tommy has found in his attic, and then when she starts writing, she remembers about her grandfather. अपने दादाजी के बारे में याद करती है, और दादाजी की एक बात याद करती है। एक बार की बात है, मार्गी के दादाजी उसे अपने दादाजी के बारे में, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, अबाउट मार्गीज ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, हर ग्रैंडफादर वाज टेलिंग समथिंग हिज ग्रैंडफादर। सो हियर आई हैव रिटन Margie remembers her grandfather once talked about his grandfather. Grandfather अपने grandfather के बारे में Margie को बता रहे थे कि who went to an actual school. बच्चे, जब 200 साल आने वाले 200 साल के बाद की बात हम करेंगे, उस समय का जनरेशन, वो दादाजी के दादाजी और ग्रैंडसन का ग्रैंडसन हो जाएगा। उस समय का जनरेशन वो ऐसे ही कहेगा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, और हमें बताएगा कि हम कैसे स्कूल जाते थे। Who went to an actual school where the children went for education and where they were taught by human teachers. वो बता रहे थे कि दादाजी बता रहे थे मार्गी को कि मार्गी के दादाजी स्कूल जाते थे, जहां बच्चे ह्यूमन टीचर, हम जैसे टीचर्स के द्वारा पढ़ाए जाते थे। स्कूल का बिल्डिंग होता था, जो जैसे कि आज है, जैसे आज आप बच्चों अपने शिक्षकों के द्वारा स्कूल क्लासरूम में पढ़ते हैं, और अपने क्लास साथियों के साथ खूब मेरीमेंट करते हैं, खूब फन करते हैं, खूब इंजॉयमेंट करते हैं, और आइडियाज भी शेयर करते हैं। इससे हमारा डेवलपमेंट भी बहुत तीव्र गति से बढ़ता है। एजुकेशन एंड वेयर दे वर टॉट बाय ह्यूमन टीचर्स, जब उन्हें ह्यूमन टीचर्स द्वारा पढ़ाया जाता था। हाउएवर मार्गी एंड टॉमी लिव इन द फ्यूचर। मार्गी और टॉमी, just writer imagines they are living in coming future, in 22nd century, in the future world of 23rd century, where education was completely computerized. It's the imagination on the basis of the our advancement towards science and technology, uses of science and technology. On the basis of this, the author has imagined in coming future, in coming 2 years time, we will have no school, we will have no book, only computerized education facility will be there. They don't have schools, they have a special study room where computer teaches them. जहाँ स्पेशल स्टडी रूम उनके घर में ही होगा, जैसे हमारे घर में ही, उसी घर में टॉयलेट हाउस होता है, उसी घर में हमारा लिविंग रूम, हमारा ड्राइंग रूम, हमारा बेडरूम, हमारा किचन, हमारा पूजा घर, ऐसा उसी तरह से हमारे घर में ही एक पार्ट होगा, एक रूम होगा स्पेशल, जो स्टडी रूम होगा, जो स्कूल होगा, जिसमें
जिसमें कंप्यूटर टीचर इंस्टॉल्ड होंगे रोबोट के रूप में, और वेयर कंप्यूटर टीचर्स डे, और जहां उन बच्चों को वही कंप्यूटर पढ़ाएंगे। बोथ टॉमी एंड मार्गी वंडर, दे वंडर, वो आश्चर्य करते हैं एट द बुक फाउंड बाय टॉमी। जब टॉमी को वो बुक मिलता है और टॉमी जब उस बुक को पलट के देखता है, पेजेस, they turn over the pages and pages and becomes very excited to see the next page what has been written in his attic. That book was found by Tommy in his attic, and at this, when they see the book, it's the source of their wonder. They wonder at the book as they read books on screen. और जब वो उस बुक को देखते हैं and compare, when they see the original book of ancient time and comparatively they see with the books on screen, कंप्यूटर स्क्रीन पर जो बुक उनको अवेलेबल, आज भी आप भी कंप्यूटर यूज करते हैं, और आज 200 साल बाद की बात तो दूर, हम अभी भी हमारे समाज में आज भी अब शुरू हो गया है मैकेनिकल कंप्यूटर जो हमारा टीचर के रूप में काम कर रहा है। मैक्सिमम लोग दिन भर मोबाइल और कंप्यूटर पे पढ़ते रहते हैं, वहीं पर बुक, उसी स्क्रीन पे बुक खुलता है, उसको देख करके मार्गी और टॉमी आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि why they wonder, because they find the difference, between two books, one that is on the computer screen and the book Tommy had found. Computer teacher is boring, and they realized, they found the difference. What difference? They found the difference that they find that computer teacher is boring. So they don't like, he does not like the mechanical teaching, और इस तरह से मैगी मैकेनिकल टीचिंग को पसंद नहीं करती है, because mechanical teacher and mechanical teaching is boring, because it does not have any source of fun, no company at all, no classmate, no classroom, no building, all alone, one child sitting in the one single room with the computer teacher, the machine, which does not feel the feeling of the child, only it instructs to do something. Either the child is facing the problem, the computer is not responding, because the machine is not sensitive at all. So she finds the computer teacher boring, teaching and learning she finds boring on computer. She also wonders how much fun would it be studying in a school with other children. She imagines कि काश मैं भी उस दुनिया में होती और हमारे शिक्षा का भी व्यवस्था कुछ ऐसा ही होता, जहाँ स्कूल होते, जहाँ बुक होता, हमारे साथ हमारे क्लासमेट्स होते, हम कितना आनंद प्राप्त करते उस समय अपने बच्चों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ पढ़ करके, स्कूल विद अदर चिल्ड्रन फ्रॉम ह्यूमन टीचर, और हमें पढ़ाने के लिए ह्यूमन टीचर होते जिनके अंदर सेंसिटिविटी होती, जिनके अंदर सोल होता, जो हमारे फीलिंग्स को समझते, एंड वेयर दे शेयर्ड देयर आइडियाज, और जहां हम अपने मित्रों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ अपनी आइडियाज को शेयर करते, एक दूसरे को अपनी नई बात बताते, और इस तरह से हमारा डेवलपमेंट बहुत आसानी से और बहुत तीव्र गति से होता। Their ideas and had fun in the school, and इन सबों के बाद उन लोगों के पास फन होता, लर्निंग विद फन, लर्निंग विद enjoyment, and being a child, small little child, Margie hates computer teacher and likes schooling system, books and traditional way of teaching and learning, because it had fun, a lot of fun. So प्यारे बच्चों, आपने इस चैप्टर के समरी को देखा। मैं ऐसा फील करता हूँ कि what I found the important in the text I have written on the board for your use help. आपको यह क्वेश्चन आंसर करने में भी मदद करेगा। क्वेश्चन आंसर
मेंशन करेंगे और जो भी आज इस वीडियो में आपको मैंने पढ़ाया और लिखा बोर्ड पे आप उसे शेयर करेंगे अपने नोटबुक में उसे मेंशन करेंगे फॉर फर्दर यूज, ताकि आपको एग्जाम्स में वो मदद करे। निश्चित रूप से आप इसका शेयर करेंगे और कहीं कोई प्रॉब्लम, कहीं कुछ मिसिंग, कहीं कुछ कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके जरूर लिखें या व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आप अपने क्वेश्चन को राइज कर सकते हैं। तो थैंक यू चिल्ड्रेन।